एस ऑफ पेंटिकल्स अगर रिवर्स आता है तो देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स में सबसे पहले तो ये बताएगा कि दिस देयर इज अ पर्सन और एन एनर्जी इन दिस सिचुएशन व्हिच वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू. It wants to start some financial or economic opportunity, but they will not actually start it. It will just remain in the mind. तो वो होता है कई लोग कि बस सोचते ही रह जाते हैं, ड्रीम ही करते रह जाते हैं और एक्चुअली कुछ काम नहीं करते. बिकॉज पेंटिकल्स इज अबाउट प्रैक्टिकल एक्शन, सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल एक्शन. even if it's a small step you have taken, okay, but it is a practical step. It's a beginning. Here there is no beginning, it is just an idea in the mind. And sometimes we say that the person lives in his mind, lives in his dreams only, but he does nothing. So low on action, okay. And also that there is a fear of financial loss here. So there is a fear here because the mind का ये जो cloud है ना, इसके अंदर ये cloud इसमें बहुत important हो जाता है. जो आप cloud में से hand देख रहे हो, ये actually इससे cloud ज़्यादा important है. So cloud means the confusion in the mind, the fear in the mind, the blockage in the mind, which does not let you take any kind of new step towards improving your finances. And it also shows a person who is lazy to start on a fitness plan, lazy to start on a treatment. Sometimes you know that you have some problem with your body, with your health, but you just don't go to the doctor because there is fear कि वो मेरा ECG करेंगे तो पता नहीं क्या निकाल देंगे, मेरी वैल्यूज लेंगे, मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे तो पता नहीं क्या बता देंगे. तो वो जो एक फियर होता है हेल्थ को लेके कि आप कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते, वो आता है. ठीक है, उसमें वो भी आता है. तो हर तरीके का फियर आता है इसके अंदर. फिर आता है हमारा टू ऑफ पेंटिकल्स. Two of Pentacles may we will have a situation where the person is having a financial crunch, a money crunch, and he is not able to manage the various challenges which are there in front of him. He will keep worrying, but his managerial ability, upright may the managerial ability is very high. Reverse may the managerial ability or the juggling ability to multitask, that is very low. The person is not able to do the different tasks that are being demanded of him, and he will be very ineffective. So he will feel overwhelmed, he will feel bogged down, and he will be ineffective in taking any kind of practical decision. मतलब वो लॉसेस ही फेस करेगा, जो अलग अलग डिमांड्स है वो किसी भी पार्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो जब टू ऑफ पेंटिकल्स ऑपोजिट में आता है, person is having very strenuous time keeping up with the challenging time. Okay, so it's not a good card to get because it shows a person who is unable to cope with the ups and downs of life. Then Three of Pentacles. Three of Pentacles reverse is talking about a stagnation in your work environment. It says that right now is not an auspicious or a profitable time for your business. If you are thinking of getting married or having a child, you will not get success. So in all ways possible, your work will not be recognized. Rather, you will be criticized for your work or for your working style. Because it's a work-related card somewhere, you know. So what the kind of work you do or the techniques you are using to do your work, they will be criticized. People will put you down for the way you are performing professionally. Okay? और ये भी हो सकता है कि आपको कोई काम प्रॉमिस किया गया है और वो आपको आपसे ले लिया जाए. मे बी अ प्रमोशन वॉज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज प्रॉमिस, ड्यू था आपका, वो आपको नहीं मिलेगा. तो ये कार्ड हर तरीके से काम में रुकावट को दिखाता है, काम में आपके नॉन रिकग्निशन को दिखाता है. और ये कई बार ना ये भी दिखाता है कि अ कपल इज ट्राइंग टू हैव अ चाइल्ड बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव. तो अनएबल टू कंसीव भी इसमें आता है. ठीक है,
फोर ऑफ पेंटिकल्स में जो आप लोगों ने देखा था कि अपराइट में ही इज होल्डिंग ऑन टू हिज रिसोर्सेज, फॉर अपराइट में ही वाज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज मनी एंड हिज रिसोर्सेज, है ना। अब क्या होगा, ये वाली जो उसकी टेंडेंसी है टू होल्ड ऑन, टू नॉट स्पेंड एनीथिंग और टू बी वेरी सीक्रेटिव अबाउट हिज पोजेशन, ये सारी चीजें आपको बहुत एक्सट्रीम में जाते हुए दिखेंगी। तो वी विल हैव अ वेरी माइजरली पर्सन हियर, वेरी माइजरली, बहुत ही कंजूस इंसान से आपकी मुलाकात होगी, जो आपकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, जो आपका प्रपोजल भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आप कितना भी अच्छा बिजनेस प्लान लेके जाओ, सपोज ये मतलब ये वाली हाल है कि ये मतलब इंसान इस टाइम इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है अपने पैसे को लेके कि ये बच्चों की फीस जो है वो डिपॉजिट नहीं कराना चाहता। ये कह के ये छोड़ देगा कि नहीं, दिस स्कूल आई विल नॉट गो बिकॉज दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, आई डोंट वांट टू गो टू दिस स्कूल, यू प्लीज सर्च फॉर अनदर स्कूल वेयर द फीस इज लोअर। Okay, so it's very fanatical. It's almost fanatical that he wants to save money, but he is very greedy also, and also greed भी दिखाता है। एक तो miserliness, दूसरा greed भी दिखाता है कि इसके पास पहले से बहुत है, लेकिन ये अभी भी पैसे के प्रति बहुत obsessed है, और ये कुछ भी ऐसा काम करेगा जिससे इसको और पैसा मिलने की उम्मीद होगी। ठीक है, so he is very greedy also. तो ये कार्ड भी वो नहीं होता जब ये रिवर्स में आता है, तो आपको देखना पड़ेगा, बट इट शोज अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट हिज मनी to the extent that he does not want to spend on essentials also, creating lot of problems for his immediate family. ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये कार्ड जो होता है ना, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो ये क्या होता है इस कार्ड में जनरली जो पूरा कंट्रोल होगा ना रिसोर्सेज का, वो सारा इसके पास होगा। इट कैन ऑल्सो बी अ बॉस जो पैसा ही नहीं रिलीज कर रहा प्रोजेक्ट के लिए, या कोई आपका कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, वहां का कोई इंसान हो सकता है, वो पैसा नहीं रिलीज कर रहा। तो कैसे करोगे आप, या आपके क्लाइंट हो सकता है, क्लाइंट ने आपको पिच दे दिया कि आप ये प्रिपेयर करो ये प्रिपेयर करो, लेकिन उसका बजट ही नहीं है काम करने का, वो पैसा नहीं डालना चाह रहा उसका। तो ये इस तरीके की सिचुएशन दिखाता है वेर अ पर्सन वॉन्ट्स क्वालिटी वर्क बट ही इज नॉट विलिंग टू पे फॉर इट। और रिलेशनशिप्स में अगर ये उल्टा आ जाता है, इट मीन्स मेजर सीक्रेट इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम द पार्टनर, देयर इज अ मेजर सीक्रेट हियर एंड दिस पर्सन इज इन नो मूड टू डिस्क्लोज इट। बट अगर ये ऑपोजिट आता है, डेफिनेटली मीन्स दैट ही इज हाइडिंग समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, so it needs to be looked into. फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में अगर आप देखेंगे, दिस बिकम्स अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, क्योंकि अभी ये फाइनेंशियल स्कैर्सिटी दिखाता था, लॉसेस दिखाता था, लेकिन जब ये रिवर्स में आता है तो ये कहता है कि यस देयर हैव बीन सम लॉसेस डेफिनेटली, क्योंकि है तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स ही, लेकिन आपके लिए ना फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, या फाइनेंशियल फ्लोज जो है वो आपके रुकेंगे नहीं। तो कुछ तरीके की आपको प्रॉब्लम आ सकती है अपने इनकम में, लेकिन कहीं से भी पैसे का फ्लो रुकेगा नहीं, आपके पास आता रहेगा। ठीक है, तो इट्स अ गुड कार्ड टू गेट। ऑल्सो इट शोज दैट योर रेफरेंसेस एंड योर फ्रेंड्स विल कम टू योर रेस्क्यू एंड they will give you the kind of support that is needed, the kind of nurturing that is required in your difficult time. तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके कदरदान, कोई ना कोई आपके आसपास रहेगा, आपका जो आसपास का सर्कल है वो बहुत मजबूत रहेगा, और आपको प्रॉब्लम पता भी नहीं चलेगी कि अगर आई भी थी तो आपके ऊपर से होके निकल जाएगी, एंड यू विल जस्ट बी सॉर्ट ऑफ टेकन केयर ऑफ बाय द हैंड ऑफ गॉड, क्योंकि इसमें डिवाइन फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है, एंड बाय these kind of guardian angels, you know, which will come in the form of helpers to you. ठीक है, तो ये अच्छा कार्ड हो जाता है जब भी ये ऑपोजिट उसमें आता है, रिवर्स उसमें आता है। ठीक है, और ये अगर कोई हेल्थ का क्वेश्चन है तो उसमें फास्ट रिकवरी दिखाता है। रिलेशनशिप में ये दिखा सकता है कि पहले ये पर्सन जो था आपको इग्नोर करता था, आपकी वैल्यू नहीं करता था, लेकिन अब अगर ये कार्ड रिवर्स में आएगा, इट मीन्स अ न्यू काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर यू फ्रॉम योर पार्टनर। दिस कार्ड इज important if it comes in a relationship reverse. Then we come to six.
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, देखिए ये दो तरीके की चीजें दिखाता है, इसके कई मीनिंग्स हैं। देखिए एक तो ये है ना कि इसमें स्केल पकड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, तो स्केल्स का इम्बैलेंस है बेसिकली। तो एक तो ये दिखाएगा ओवर जेनरस पर्सन, मतलब कि देर इज अ पर्सन हियर हु डज चैरिटी, हु डज फिलांथ्रोपिक वर्क, बट ही गोज टू एक्सट्रीम, मतलब वो एक्सेसिव चैरिटी कर सकता है, ओवर जेनरस है, ठीक है, क्योंकि चैरिटी करते टाइम भी कभी ना कभी थोड़ा सा आपका लिमिट होना चाहिए, ठीक है ना, चैरिटी इज अ पार्ट, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग शुड गो फॉर चैरिटी, यू शुड सेव ऑल्सो, right? So there are no savings when this card comes in reverse. There are no savings. Whatever he is getting, he is spending in charity. ठीक है, तो वो भी दिखाता है। फिर एक चीज ये भी दिखाता है, अगर आप इसको यू कैन टेक इट ऑल्सो फ्रॉम दिस पर्सन, दिस बेगर्स पर्सपेक्टिव, दैट इट माइट शो अ पर्सन हु हैज बिकम सो यूज टू लिविंग ऑन हेल्प। कई लोग होते हैं ना जो खुद से कुछ काम ही नहीं करते हैं, जिनकी खुद की सारी कर्मठता, खुद का हार्डवर्क खत्म हो जाता है, एंड वो डिपेंड करने लगते हैं कि कोई ना कोई हमारे जो दोस्त हैं, कोई अमीर दोस्त या कोई अमीर रिश्तेदार हमारी